وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے بچوں کا آخری بال بھی قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے کوئی جادو کی چھڑی کام نہیں آئے گی، محنت کے علاوہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری ہے، معیشت کی بحالی کے لیے مزید وسائل پیدا کرنے ہوں گے، آج یکجان ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ تاریخ کا خاصا وسیع اتحاد ہے جس کے اوپر نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ اتحاد انشاءاللہ ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے آپ اپنے آپ کو غوطہ زن ہوں گے کہ یہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس ڈوبتی ناؤ کو اب کنارے لگانا ہے۔ یقیناً ہر طرف مسائل ہیں، وسائل کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کا فیکٹ بیس جواب دینا ہوگا، حقائق کی مدد سے، فیکٹس کی مدد سے۔ کرپشن جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں جو کہ عروج پر تھی، اس کو ختم کرنا ہے، اور قوم کی، اس غریب قوم کی جو کہ قرضوں کے اندر پھنس چکی ہے، ہمارے اس انتہائی دردناک صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم نے کام کرنا ہے۔ ان کے ساتھ کیا بیتی، آپ کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ ہوا، وہ پوری قوم نے دیکھا، اور کس طرح آپ نے مقابلہ کیا اس کا۔ بیوروکریسی نے، افسرشاہی نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے، کس طرح ان کو براؤ بیٹ کیا گیا، آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے کیا کیا ظلم و ستم کیا گیا۔ کوئی جادو کی چھڑی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ محنت کرو، پھر مجھ سے میرے فضل کے لیے دعا مانگو، میرے آگے جھکو۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے عمران حکومت کی نااہلی کا خط میڈیا کو دکھا دیا۔ کہتے ہیں اس خط میں عمران خان کا معاشی جھوٹ شامل ہے۔ ہم مہنگائی 3.9% پر چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت اس کی شرح 17.3% ہے۔ ہم IMF پروگرام بحال کریں گے، بجٹ خسارہ واپس لے کر آئیں گے، امید ہے اب روپیہ مزید نہیں گرے گا۔ عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپے سے زائد قرض لیا، 1 پیسہ قرض ادا نہیں کیا گیا۔ 2021-22 میں بجٹ خسارہ 5,600 ارب روپے ہے۔ یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور PTI نااہل ہیں۔ میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں۔ میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ۔ یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے۔ اس سال، صرف اس سال یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے۔ پونے 4 سالوں میں اگر آج تک گن لوں تو خان صاحب نے 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے۔ جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، کوشش ہے عوام کو مہنگائی سے نجات دلائی جائے۔ سرکاری ملازمین کا کہنا ہے نیب کے خوف سے ہم نے 4 سال میں کوئی کام نہیں کیا، 4 سال بہت برے گزرے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ آٹے اور چینی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ محمد رائے طاہر کو DG FIA مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ مزید کیا کہا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا ہے تو ہر روز صبح دوپہر شام وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے جو مہنگائی ہے، جو ایک مہنگائی کا عذاب جس میں 4 سال پچھلی حکومت نے پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، کس طرح ایسے اقدامات کیا جائیں، کچھ فوری ریلیف دیے جائیں جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک سکون کا سانس لے سکے، کیونکہ جس طرح کی معاشی دہشت گردی پچھلے 4 سال میں کی گئی اور اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کی معیشت پر پڑے بلکہ ہر پاکستانی کی جیب پر پڑے، جو انہوں نے آتے ہی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا،
गिरफ्तारियां की, सजाए मौत की चक्कियों में रखा, सियासी मुखालफिन के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई, पार्लियामेंट के खिलाफ चलाई, मीडिया के खिलाफ चलाई, सरकारी अफसरान के खिलाफ चलाई, और जो सरमायाकार थे मुल्क में, कारोबारी हजरात थे, कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले जो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं, उन सबको नैब न्याजी गठजोड़ की नजर किया। वजीर आजम ने सवाल किया कि क्या कर रहे थे आप लोग, क्या काम कर रहे थे, तो उनका एक ही जुमला था, उन्होंने कहा नैब के खौफ से हमने 4 साल कोई काम नहीं किया, और उस वजह से जो पाकिस्तान की अवाम का नुकसान हुआ, जिसका खमियाजा आज आप लोग हम लोग भुगत रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुँच गए। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात उनकी इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी के दरमियान इस वक्त मुलाकात जारी है। चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती और गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भेजी गई समरी पर बातचीत होगी। अमूर ममलिकत चलाने के लिए बाहमी ताउन के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल भी होगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात उनकी इस वक्त जारी है। इस मुलाकात में चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती और गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भेजी गई समरी पर बातचीत होगी। अमूर ममलिकत चलाने के लिए बाहमी ताउन के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात इस वक्त जारी है। इस मुलाकात में चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती और गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भेजी गई समरी पर बातचीत होगी, जबकि इसके अलावा अमूर ममलिकत चलाने के लिए बाहमी ताउन के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताएगा इस मुलाकात का हवाल। देखिए, ऐवान सदर में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात जारी है। जो अमूर मुमलिकत हैं उस पर तफसीली जो मुशावरत हो रही है। गवर्नर पंजाब के इस्तीफे और तैनातियों, गवर्नर की तैनातियों के मामले पर जो है मामलात जो हैं वो भी इस डिस्कशन में आएंगे। ये एक अहम मुलाकात इस हवाले से है क्योंकि जो चीज़ जो क्रिएट हुई थी जिसमें सदर मुमलिकत जो है वो हलफ नहीं ले रहे थे और दीगर मामलात थे, उस पर आज जो है वो तफसीली मुलाकात हो रही है। अब से कुछ देर बाद जो है इस मुलाकात का अलामिया भी जारी होगा। ठीक है, अब से कुछ देर बाद मुलाकात का अलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला आमद, बतौर वजीर दाखिला ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजारत दाखिला में अपने दफ्तर आमद पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर समेत दीगर हुकाम ने वफाकी वजीर का इस्तकबाल किया। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के 46वें वफाकी वजीर दाखिला तैनात हुए हैं। राना सनाउल्लाह इससे पहले 5 मरतबा रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, साउथ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साउथ बताएगा। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज 46वें वजीर दाखिला के तौर पर अपना जो ओहदा है उसका चार्ज संभाल लिया है। वजीर दाखिला जब अपने दफ्तर पहुंचे तो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर समेत दीगर हुकाम ने उनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया। राना सनाउल्लाह इससे कबल 5 मरतबा रुकन पंजाब असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं और 2013 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब हुकूमत के दौरे में सूबाई वजीर दाखिला भी रह चुके। राना सनाउल्लाह ने आते ही अपनी 4 अजम्पशन जो रिपोर्टर्स पर दस्तखत भी किए हैं और जो हुकाम है उनसे ब्रीफिंग ली जा रही है कि वजारत दाखिला के अंदर कौन कौन से मसाइल सर फहरिस्त हैं। खसूसी तौर पर जो वजारत दाखिला के अंडर डिपार्टमेंट जो FIA समेत दीगर पुलिस के महकमे उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी जो जायजा इजलास है राना सनाउल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउथ भट्ट आपका। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना है, शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते, तनकीद से इदारे कमज़ोर नहीं होते, गरीब इंसाफ के हुसूल के लिए 20-20 साल एड़ियां रगड़ता है, मगर ताकतवर के लिए रात को भी अदालत खुल जाती है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया। दरखास्त जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, रोज कोई इत्तेहादी रूठ जाता है, ये हुकूमत नहीं चल सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता। इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नजर आता है और हमें नहीं नजर आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नजर आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाएं तो उस पर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद हो। साबिक वफाकी वजीर बोले कि तनकीद से अदारे कमजोर नहीं होते, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन तस्लीम किया। ये आइन का हिस्सा है कि अगर कोई फैसला किया जाए जिसके ऊपर आपके ख्याल में तनकीद बनती है, आपके ख्याल में उससे आप इत्तफाक नहीं करते, तो ये मेरा आईनी हक है, इससे इदारे कमजोर नहीं होते। असद उमर का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान ने तकर्रर नहीं किया। बिलावल भुट्टो की बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन मरहूम के घर आमद। बिलावल भुट्टो ने वाजिद शमसुल हसन और उनकी अहलिया जरीना वाजिद के इंतकाल पर उनके बेटे जुल्फ़िकार शमसुल हसन से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वाजिद शमसुल हसन मेरी वालिदा के दरीना साथी थे, उन जैसे वफादार साथी हर पार्टी को नसीब नहीं होते। वाजिद शमसुल हसन की पाकिस्तान और बरतानिया में हम वतनों के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सादिक और खुरम दस्तगीर की बतौर वफाकी वजीर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रियाज हुसैन पीरजादा और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की बतौर वफाकी वजीर तैनाती कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कई अहम वजारतों पर वजीरों को कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। वजीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजो को भी कलमदान ना दिया जा सका। तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा। दस्तगीर रियाज हुसैन पीरजादा और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की बतौर वफाकी वज़ीर जो है कैबिनेट वज़ीर ने तैनाती कर दी है, लेकिन ताहाल इनको कलमदान जो है वो नहीं दिए जा सके। इसके साथ जो है वज़ारत तवानाई बनन सूबाई राब्ता इक़्तिसादी अमूर जो हैं, पार्लिमानी अमूर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वज़ारतें जो हैं उनमें शामिल है, जहाँ पे जो है अभी वज़ीर नहीं लगाई जा सके। इसी तरह वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू को भी कलमदान जो है वो नहीं दिया जा सका। वज़ीर ख़ारजा की तैनाती भी नहीं हो सकी। नए रबानी सर वज़ीर मुमलिकत तैनात की गई हैं। वफाकी वज़रा से महरूम वज़ारतों डिवीजन के इंचार्ज वज़ीर जो हैं इस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। इमरान खान जो कहते हैं वो करते नहीं, उनके कॉल और फेल में तज़ाद है। इमरान खान हर वो काम खुद कर रहे हैं जिस पर एतराज़ करते थे। ये कहना था तहरीक इंसाफ के बागी रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन का। कहते हैं 2 साल से पार्टी में रहकर जो बातें की वो सच साबित हो रही हैं। आज भी इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि हमारी हुकूमत करप्शन कर रही थी। बाकी अरकान अलग ग्रुप बनाने जा रहे हैं। जल्द आइंदा का लाहेमल का ऐलान करूँगा। बड़ा इशू ये है कि आइन को कभी मुतसादिम नहीं होना चाहिए। कोई भी जमात हो, कोई भी पार्टी हो, उसको आइन से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। आज ये साबित हो गया कि हमने अगर पार्टी में रहकर किसी चीज पे इख्तलाफ किया है तो उसका मतलब ये था कि ये वो लोग हैं जो आइन से मुतसादिम होते हैं, जो आइन को नहीं छोड़ते, वो हमें डिलीवर क्या करेंगे। हमने तो वोट कास्ट नहीं किया पार्टी के। देखिए, ये रवैया जो है इस मुल्क के लिए नुकसान है, और जो मुल्क का लिए नुकसान करेगा, ठीक है, एक आदमी मुल्क का नुकसान करे और वो कहे कि मैं मुल्क से पैट्रियट, जब उसके दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन हुई हो, लॉलेसनेस हुई हो, और वो कहे कि मैं ऑनेस्ट हूँ और बाकी सब करप्ट, कोई ये जायज बात है। देखिए, बात यह है कि मेरा जुर्म ये है कि मैं पार्टी में रह के 2 साल से पार्टी से इख्तलाफ कर रहा हूँ। पार्टी को जो पार्टी के लॉलेसनेस है, जो पार्टी के में मसाइल है, उनके बारे में मैंने इस्तीफ़ा भी दिया है। मैंने उन मसाइल के बारे में इस्तीफ़े के अलावा मुझे शो कॉज भी नोटिस भी जारी हुआ है जब मैंने करप्शन पे बात की थी। तो ये सब चीज़ें मुझसे शुरू से हो रही हैं और मैं शुरू से जो पार्टी में गलत चीज़ें उन पे एहतजाज कर रहा हूँ। और उनको पता है, आपको जो पार्टी में रह कर एहतजाज करे उनको वही पसंद है। उनको मुल्क के मफाद की तरफ कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के सोच। डॉक्टर शहजाद वसीम को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने डॉक्टर शहजाद वसीम को नामजद किया है। इससे कबल यूसुफ रज़ा गिलानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। पीटीआई 28 सेनेटर्स अपोजिशन का हिस्सा होंगे। आपको बताएं कि डॉक्टर शहजाद वसीम को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया गया है।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने डॉक्टर शहजाद वसीम को नामजद किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़िला दादू की तहसील में आतिशज़दगी के साहने पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दादू के 2 देहातों में आतिशज़दगी से मासूम बच्चों की हलाकत का साहना दिल दहला देने वाला है। माल मवेशी और अमलाक जलकर खाकिस्तर हो गए। मुतासरीन को गम की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत कर रहा है। फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा कि मुशर्रफ ने 2002 में LFO के जरिए 58(2)B को बहाल किया। 14वीं तरमीम में पार्टी सरबराह को बहुत वसी इख्तियारात थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1) की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की। आर्टिकल 63A में 4 मौक़ों पर वफादारी को पार्टी पॉलिसी से मशरूत कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बहुत अच्छे दलाइल दिए, बहुत सारे ग्रे एरियाज को क्लियर किया। शहबाज शरीफ की काबीना में 5 बेहतरीन सियासी समझ बूझ रखने वाली खवातीन शामिल। हिना रबानी खर वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर, आयशा गौस पाशा बेहतरीन इकॉनमिस्ट, शाजिया मरी समाजी अमूर की माहिर, मरियम औरंगजेब अबलागियात की माहिर जिसने PTI हुकूमत के वजीरों मशीरों को तिगनी का नाच नचाए रखा, और तजुर्बाकार सेनेटर शेरी रहमान जिनकी काबीना में मौजूदगी ही संजीदगी को जाहिर करती है। कोयटा में 22 और 23 अप्रैल को दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर लगाई गई है। मज़ीद जानेंगे, रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा इन पाबंदियों के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर 22 और 23 अप्रैल को जो है वो शहर भर में दफ़ा 144 के नफाज कर दिया गया है। इस मौके पर न सिर्फ डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है बल्कि साथ ही साथ असले की नुमाइश पर भी जो है वो पाबंदी आयद होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन का इजरात कर दिया गया है। 22 और 23 अप्रैल को यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर कोयटा में जुलूस भी निकाला जाता है, जिसकी पेश नज़र जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम को मुकम्मल किया जा रहा है और साथ ही साथ शहर भर में दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान सईद आपका।